Hello, my dear students. Today I am taking Coordination Chemistry Unit 5 and the topic is Valence Bond Theory, VBT. In earlier lecture, we have to discuss about the coordination compounds, their characteristic or the terminology, and after that studying about the naming, IUPAC naming. And then after the next topic is the valence bond theory. And the valence bond theory, this theory was proposed by Pauling. Pauling ने इस theory को propose किया था. And according to this theory, the central atom, because you know in the coordination compound, this is the coordination sphere, and inside the coordination sphere, coordinate compound is enclosed. And in coordinate compound, this is called as the central atom, and central atom is always D block element. And after the central atom, the next one is called as the ligand, and ligands are those which donate the lone pair of electron to the central atom. And the coordinate compounds are formed by the donation of the lone pair of electrons. So these are the ligands and these are the central atom. This is also be discussed in our previous lecture. So this is the ligand and this is the central atom, and this number is called as the coordination number. And coordination number is the number of the ligands which surround the central atom. And in VBT, the first point, this is to be explained by Pauling, and the first point is that the central atom must contain the empty space. देखिए Pauling ने कहा था कि central atom के पास empty space होनी चाहिए. Valence orbit में contain the valence empty space in the valence orbit. So how to confirm? हम कैसे confirm करेंगे? हम कैसे VBT पे explain करेंगे examples को? So first to write the atomic number of iron. Iron का atomic number 26 है. आपने configuration लिखा, this is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 4s2 and 3d6. This is जो आपने ये 11th क्लास में बहु प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, उसके हेल्प से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. एंड फर्स्ट टू राइट, जब भी हम VBT के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसका नाम लिखना चाहिए. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6. दिस इज कॉल्ड एज द हेक्सा. CN मीन्स साइनो, हेक्सा साइनो. एंड इफ द नेगेटिव लिगेंड इज अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, अगर नेगेटिव लिगेंड सेंट्रल एटम से अटैच होता है, देन इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स. तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स. एंड इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स वी यूज द सफिक्स 8. तो हमें सफिक्स क्या यूज करना है, 8 सफिक्स यूज करना है. So the name of this compound is hexacyanoferrate, and here the oxidation number is 2 because अभी oxidation number मैंने अपने पहले lectures में आपको clear किया. साइनाइड के ऊपर -1 इंटू 6 माइनस का 6, और सेंट्रल एटम का हमें फाइंड करना होता है. तो सेंट्रल एटम के लिए आपका x हो गया, x प्लस -1 इंटू 6 is equal to minus का 4, then x minus 6 is equal to minus 4, then x is equal to minus 4 plus 6 is equal to plus 2. So oxidation number is always written inside the parenthesis and in a Roman letter. इनको हमेशा हमें रोमन लेटर में लिखना है. So the name of this compound is hexacyanoferrate second iron. And if the charges are present on the upper side, then we have to use the term iron. तो हमें use करना है iron. Now, first to write, सबसे पहले हमने क्या किया? First to write the simple configuration, and after that, here the iron has tendency to lose the 2 electron. In this case, because oxidation number is 2, so the configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 3d6 and 4s0, because it lose the 2 electron from the valence shell. इसने valence shell से अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया. The largest जो आपका ऑर्बिटल बन रहा है, this is the fourth orbit से उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया. And then after configuration is as, इस तरीके से इसका configuration हुआ. Then after draw the structure. For drawing the structure, determine their ground state.
सबसे पहले मैंने ग्राउंड स्टेट चेक किया। इन द ग्राउंड स्टेट, जैसा कि आपको हमने हमेशा बताया, वैलेंस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। वैलेंस में भी जो इनकम्प्लीट होंगी वो पार्टिसिपेट करेंगी। हियर द डी ऑर्बिटल कंटेनिंग, डी ऑलवेज कंटेन 5 ब्लॉक्स, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड 4s ऑर्बिटल को मैंने ड्रॉ किया। एंड देन आफ्टर ड्रॉ, अगर 4s ऑर्बिटल आएगा तो ऑलवेज रिमेंबर p ऑर्बिटल भी हम जरूर बनाएंगे। ये क्या हो गया, दिस इज द 4p। और एक बात ध्यान रखना है, d ऑर्बिटल हम वन साइड का लेंगे। अगर हम 3d ले रहे हैं तो हम 4d नहीं ले सकते, और अगर हम 4d ले रहे हैं तो हम 3d कंप्लीट होगी तभी हम 4d को यूज कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं। जैसे पहला पॉइंट कहता है बीबीटी का, द सेंट्रल एटम मस्ट कंटेन द एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। एंड देन आफ्टर the number of ligand is equal to the number of empty space। इसका नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ही उसके पास स्पेस होनी चाहिए। अब स्पेस कैसे हो, यहाँ पे तो स्पेस आ रही है 1 2 3 और 1 4 होनी चाहिए, टोटल कितनी 6। देखिए अभी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास साइनाइड, जैसे कार्बोनाइल एंड अमाइन, दीज आर द 3 लिगेंड्स। These are strong ligands। ये कैसे ligands होते हैं, strong ligands, and rest of the ligands are the weak ligands, and strong ligands always push back the electron to the inner side। जो strong ligand होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को push back करते हैं, और जैसे ही push back करेंगे then this stage is called as the excited state। और excited state में अब आप देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे D के पास, 1 2 3 4 5 6। मतलब है ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनको साइनाइड ने क्या किया, क्योंकि जो साइनाइड है, साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, पुश बैक करते हैं, धकेलते हैं पीछे की तरफ। और जैसे पीछे की तरफ धकेला तो ये क्या हो गए, ये जो डी ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। बिकॉज लिगेंड्स डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लिगेंड का काम क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन वो देंगे। अब देखिए अभी हमारे पास सेकंड जो इसकी वीबीटी की आपकी पॉइंट होता है वो क्लियर हो रहा है। द नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस ऑर्बिट, नंबर ऑफ वैलेंस और एम्प्टी स्पेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड। लिगेंड के बराबर ही खाली जगह होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट कहता है बीबीटी का, दीज द लिगेंड्स हाइब्रिडाइज विद द सेंट्रल एटम। ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे सेंट्रल एटम की ऑर्बिटल के साथ। एंड देन इट शोज, और उसके बाद ये शो करेंगे स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। हियर द हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। देखिए कुछ चीजें मैं आपको ट्रिक्स की बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन विदाउट ट्रिक हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे मुझे 28 ईयर से एक्सपीरियंस है तो मैं आपको ट्रिक्स बात बताती जाती हूँ, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 देन देयर इज 2 पॉसिबिलिटी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 and in some of the cases the hybridization is D2sp3। अगर 6 नंबर का कोऑर्डिनेशन होता है तो या तो sp3d2 बनती है या D2sp3। और एक बात, इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ये ट्रिक्स हैं, देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 और द हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2। हम लोग ओपन करके चेक कर लेते हैं कि उस पे किस पे इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। ठीक है, अब आपका वीबीटी का नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, इफ द आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, अगर आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी देन इट फॉर्म द आउटर कॉम्प्लेक्स। तो इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, आउटर कॉम्प्लेक्स। एंड इन आउटर कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना, अगर आउटर कॉम्प्लेक्स होगा देन ऑलवेज द स्पिन इज हाई। तो इसकी स्पिन कैसी होती है, हाई होती है। एंड इफ द इलेक्ट्रॉन एंटर इन द इनर डी ऑर्बिटल, अगर इलेक्ट्रॉन इनर डी ऑर्बिटल में एंट्री करता है देन इट फॉर्म द इनर कॉम्प्लेक्स। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर कॉम्प्लेक्स। एंड इन इनर कॉम्प्लेक्स द स्पिन इज लो। तो ये कैसा स्पिन शो करता है, लो स्पिन शो करता है। एक और बात जो हमेशा हमारे ट्रिक्स की है, इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 देन ज्योमेट्री इज ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्री हमेशा कैसे आती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। एंड फॉर sp3 ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल।
ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, एंड DsP2 द ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। तो हमारे पास VBT के कुछ पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट कि सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। सेकेंड थिंग दैट एम्प्टी स्पेस इज इक्वल लिगेंड, लिगेंड के नंबर के बराबर होना चाहिए। देन आफ्टर दे हाइब्रिडाइज टुगेदर, उसके बाद ये हाइब्रिडाइज होती है। हाइब्रिडाइजेशन में मुझे चेक करना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है इफ द आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट फॉर्म द आउटर कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन। आपको कॉम्प्लेक्स बताना पड़ता है, आपको स्पिन बताना पड़ता है, आपको ज्योमेट्री बतानी पड़ती है। एंड दीज आर कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। इनको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज, जो आपको आंसर में देना पड़ता है। अब यहाँ पे हमने इसकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज भरी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। एंड अभी देखिए आपको खुद ही क्लियर हो रहा है, अगर D2sp3 है तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा। हियर द कॉम्प्लेक्स इज इनर, कॉम्प्लेक्स कैसा आ गया, इनर। एंड फॉर इनर कॉम्प्लेक्स द स्पिन इज ऑलवेज लो स्पिन। देखिए इस चीज को हम आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कभी शादी में बारात में जाते हैं तो सड़क पे डांस होता है, तो निश्चित है कि हम लोग कौन सी स्टेज में है, आउटर में है। और अगर हमारी आउटर होती है तो हमारी स्पिनिंग, हम लोग ज्यादा फ्री होके डांस करते हैं ना, क्योंकि हम बाहर की तरफ डांस कर रहे हैं। तो अगर हमारी आउटर स्पिन होती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्पिन कैसी होगी, हाई होगी। लेकिन अगर वही साउंड हमको आवाज बाहर, घर के अंदर हम हैं, बाहर नहीं मतलब बारात में हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हम अंदर की तरफ है, तो क्या होगा, फिर तो डांस तो करेंगे लेकिन ज्यादा कूद कूद के नहीं करेंगे, मतलब हमारी स्पिन के। तो ऐसे याद रखना है, अगर इनर कॉम्प्लेक्स होता है तो स्पिन लो होती है, और अगर आउटर कॉम्प्लेक्स होता है तो स्पिन हमेशा हाई होती है। ये कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में ध्यान रखने हैं, क्योंकि हमारे एक एक नंबर इन पॉइंट से जुड़े हैं। स्पिन कैसा हो गया, लो। ज्योमेट्री कैसी आएगी, ज्योमेट्री मैंने अभी आपको बताया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ज्योमेट्री कैसी आएगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री बनेगी ऑक्टाहेड्रल। और लास्टली हमें चेक करना पड़ता है if all the electrons are paired or unpaired, that means this is called as a magnetic behavior। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। और मैग्नेटिक बिहेवियर में पॉइंट आपने DNF में भी मैंने आपको बढ़ाया था, if all the electrons are paired then it is dimagnetic, if one of the electron is unpaired then it is paramagnetic। Here all the electrons are paired in the excited state, that's why it is dimagnetic in nature। ये बाय नेचर कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। अभी मुझे लास्ट में इसका ड्रॉ करना पड़ती है क्या, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री ड्रॉ करने के लिए, ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए 11th क्लास से ही बताया जाता है कैसे बनाते हैं। आयरन में आप क्या कीजिए, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हमें ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, अपर लोअर, लेफ्ट एंड राइट, कितने हो गए टोटल 4, ऊपर नीचे दाएं और बाएं कितने हो गए 4, एक आगे और एक पीछे, अपर लोअर हो गए, लेफ्ट राइट, आगे और पीछे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये हो गई 4 की ज्योमेट्री आपको दिख रही है। फिर 5 6 7 8, 4 + 4 = 8। ध्यान रखना अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल आएगी। तो इस तरीके से आपको मैंने एक शॉर्ट व्यूज में VBT विद एग्जाम्पल समझा दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल में आपको लो स्पिन मिलेगा, किसी में आपको हाई स्पिन मिलेगा, किसी में आपको इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, किसी में आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज अ हाईली पैरामैग्नेटिक and another one is a low paramagnetic or it is dimagnetic। तो डाइमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सॉल्व करना बहुत इजी है, और क्योंकि अगर डाइमैग्नेटिक है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, पैरामैग्नेटिक है तो अनपेयर्ड है। अब अगर वो ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक, इसके मतलब है उसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। आयरन का अगर 3+ स्टेज आती है, अगर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इट इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक का वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमको VBT के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं आपको आगे और भी वीडियोस दूंगी। आपको जो भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख के भेजिएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। VBT